Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. So let's proceed up further. We were discussing about chapter first, and it is quite surprising that the name of the chapter first, which is given in Flamingo, is the last lesson. So already we have discussed that the chapter contains many themes ऑल टुगेदर. बहुत सारी थीम्स के बारे में हमारा जो चैप्टर है वो बात कर रहा है. क्या क्या है वो? सबसे पहले हमने देखा रिलेशनशिप फिनोमेना में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड हो रही हैं. क्या क्या ऐड हो रही हैं? सबसे पहले तो रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर. सबसे पहले किसके बारे में दिखा रहा है? टीचर एंड स्टूडेंट. सेकेंड फेज में व्हाट वी सॉ कि रिलेशनशिप दिखा रहा है यहां पे विद अ कंट्री, between a teacher and school. So about these three phenomena already we have discussed. Teacher and student में little friends and Mr. Hamill, they share an excellent relationship that we have seen. About the country already Mr. Hamill is telling students as well as the elderly members of the place that if the bonding between citizens and country that is strong, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आनी है कंट्री पर वो नहीं आती. एज यूजुअल मतलब आती हैं लेकिन वो चली जाती हैं. वी until unless we are in love with our country we have the courage to face all those problems. बाद में हमने एक और रिलेशनशिप देखी यहाँ पे, टीचर एंड स्कूल. टीचर एंड स्कूल रिलेशनशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमें मिल रहा है मिस्टर हैमिल से. द स्कूल इन विच मिस्टर हैमिल इज टीचिंग, ही इज देयर सिंस 40 years. 40 साल का लंबा सफर he had traveled with that school. So there are lots of memories which are associated with that school. Entire furniture, small plants, big plants, citizens of that particular place, सभी से एक अनकहा सा रिश्ता जो है वो मिस्टर हैमिल का हो गया है. So मिस्टर हैमिल consider and concern that place his own. वो बच्चे, वो स्कूल, the furniture, everything seems to be his own. And whenever we are aparting from our near and dear ones, the pain we only can imagine. The person who has suffered can only explain the pain. And Mr. Hamill at that time was suffering that pain of separation. So these things we have discussed. One thing more we have discussed is that the students must pay attention on the words spoken by the teacher. All the teachings which are given to the pupils by a teacher are very important. Generally, students take all those things very casually. कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत टाइम पड़ा है. हाँ, being a student, you too, तुम लोग भी करते हो. But what are the drawbacks of this situation that we have seen here in this chapter, the last lesson, when we see our little friends regretting that why he had not paid attention to the teachings of Mr. Hamill yet. And now he is in pain. He is feeling bad that as Mr. Hamill will go away. अभी मिस्टर हैमिल जो हैं वो चले जाएंगे यहाँ से,
तो कौन है जो मुझे ये सारी चीज़ें सिखाएगा या बताएगा? Who will be there with me? कौन मेरी मदद करेगा ये सब सीखने में? So all these things they are coming inside the mind and soul of little Fred. वो ये सारी बातें जो है वो सोच रहा है. So proceeding further, Mr. Hamill has been portrayed here as a critic of himself. He is criticizing parents for not helping students and he is criticizing himself too. अब ये मिस्टर हैमिल के कैरेक्टर की एक क्वालिटी को हमें बता रहा है. हाउ मिस्टर हैमिल जो है ही क्रिटिसाइज हिमसेल्फ एंड द पीपल ऑफ अलास्का. किस चीज़ के लिए वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं? While we notice that while little Franz he was thinking of all this, क्यों नहीं पढ़ा वो, why he had not paid attention, at that time he heard his name called out. It was his turn to recite. As Mr. Hamill was taking the last lesson, so Franz जो है हमारा he is lost in his own world and at the same time Mr. Hamill जो है वो उसको बोलते हैं. अब he would have given anything to be just able to say the rules of the participles very clearly. Now inside his heart, soul, mind, he wants to tell everything to Mr. Hamill to show his respect towards him. But unluckily, what we see, unfortunately, he got mingled up with the first word only because he was not clear about the topic. He haven't paid attention towards the studies. So words seems are not willing to come out from his mouth. And he was also ashamed and stood holding the desk. खड़ा डेस्क को पकड़ के खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोल पाता है. Now M. Hamill said that he would not scold him. If it would have been some other day, तो मिस्टर हैमिल जो है वो रूलर से बढ़िया से पिटाई कर देते, बिकॉज एज ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर. बट क्योंकि वो उनका लास्ट दिन था, सो ही डजंट वांट टू स्कोल्ड एनीबॉडी. सो ही सेड टू फ्रेंड्स टू दैट आई विल नॉट स्कोल्ड यू. ही क्रिटिसाइज्ड द पीपल ऑफ अलास्का for their habit of putting off learning for some time in the future. वो बोलता है कि ये जो एटीट्यूड है अलास्का के लोगों का कि पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, we will do it later on, इस हैबिट की वजह से they have lost many things. He also criticized himself. He blamed himself and parents for not taking interest in the studies. अब वो खाली पेरेंट्स को ही नहीं ब्लेम कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहाँ नेग्लिजेंस रहा, दैट ऑल्सो ही पॉइंटेड आउट. He sent the students to water his plants or gave them a holiday when he himself wanted to go out for fishing. Many times when he noticed that students are not paying attention or they are not willing to study today, they are not in a mood to study today, whenever he found such things, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, हमेशा ही बच्चों को छुट्टी दे दी. So he criticized himself too for the negligence he has done previously. Later on, we see in the chapter, as the chapter proceeds, Mr. Hamill expresses the importance of mother tongue. How? Mr. Hamill then talked about the French language. वो क्योंकि फ्रेंच ही बोली जाती है वहाँ पर, तो उसकी इम्पोर्टेंस को मिस्टर हैमिल जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. He called it the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. By these three words, he
praised French language a lot. He wanted the people of France to treasure their language. वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वहाँ पर वो क्या करें, अपनी लैंग्वेज को सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको समझें, क्योंकि he has a specific reason behind that. And what the reason is, according to M. Hamel, whenever the people of a particular place, of a particular country, they become enslaved. So as long as they are attached to their language, tradition, culture, it is if they have the key to their prison. जब तक कि अपनी लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सारी चीज़ों से प्यार है लोगों को, उस पर्टिकुलर जगह के लोगों को, तब तक कोई भी बहुत लंबे टाइम के लिए उनको एनस्लेव करके नहीं रख सकता. उसको आज नहीं तो कल कोई भी ऐसा रीज़न बन जाएगा, निकल आएगा कि वो लोग फिर से फ्री हो जाएंगे. सो मिस्टर हैमल ऑल्सो टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, द importance of loving their country, not only country's tradition, art, culture, language, everything. तो patriotism की जो importance है, that is also being shown here by Mr. Hamel. Now we see that Mr. Hamel is delivering his last lesson. Mr. Hamel जो हैं वो क्लास में अपना लास्ट लेसन जो है वो डिलीवर कर रहे हैं. Now Mr. Hamel opened a grammar book and taught them their last lesson. Now Franz was amazed to see how well he understood everything. उस दिन जो कुछ भी मिस्टर हैमल ने पढ़ाया, each and everything seems very easy to understand to little Franz. And till that day or before that day, Franz find it very difficult to learn of the things, to understand the concept. अब एक दिन में क्या डिफरेंस आ गया? Because little Franz has never concentrated on what Mr. Hamel is teaching. Mr. Hamel क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, आज से पहले फ्रेंड्स ने कभी भी इन चीज़ों को सीरियसली सुना ही नहीं. एंड टुडे हिज एंटायर कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट ऑन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर हैमल. सो ही इज एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड uttered by Mr. Hamel. हर वर्ड उसको समझ में आ रहा है. Now friends thought that how it is possible that he never paid attention much in the class and that M. Hamel had never explained everything with so much of patience. अभी भी he is not confirmed about this thing. What he is thinking is कि आज क्या हो रहा है ये? How this thing is happening? Either I have not paid attention in class as I am paying today, or Mr. Hamel is teaching at his best today. He is explaining each and everything with much clarity than other days. ये सारी बातें जो हैं they are going inside the mind of little Franz. After that, they had a lesson in writing. After explanation grammatical point, Mr. Hamel जो हैं वो writing section की कुछ चीज़ें उन्हें कराते हैं. अब Mr. Hamel had bought new notebooks for everyone that day. Everyone was immersed in their work, busy in their work, doing their best effort. How much they can do, बिल्कुल clearly.
जितना बेस्ट अपना कर सकते हैं सभी लोग उस दिन अपना बेस्ट कर रहे हैं. इवन द स्मॉल चिल्ड्रन, द लिटिल चिल्ड्रन हु वर sitting in the class, they were tracing their fish in the hook as if that was French too. Now all, there are students of not a single class, many class, ना बहुत सारे classes के बच्चे जो हैं वो वहाँ पे बैठे हैं and फ्रेंड्स जो है वो बता रहा है, भी हम नोटिस करते हैं कि the students who are very small, they are also tracing the fish and all, like वो भी उतनी ही enthusiasm से, उतनी ही सिंसेरिटी से वर्क कर रहे हैं. वॉट एवर द वर्क इज गिवन टू देम, जो कुछ भी काम उनको दिया जा रहा है वो सारा ही काम उतनी ही इम्पोर्टेंट सिंसेरिटी से वो भी कर रहे हैं. नाउ द टाइम केम फॉर फाइनल गुड बाय. आफ्टर ऑल दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, मिस्टर हैमल जो हैं ही was getting very emotional. Mr. Hamel sat motionless in his chair. जैसे जैसे टाइम पूरा होता जा रहा है मिस्टर हैमल जो है वो और डाउन होते चले जा रहे हैं, चुपचाप अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं. फ्रेंड्स थॉट, अब ऐसे में फ्रेंड्स क्या सोचता है, फ्रेंड्स थॉट दैट एम हैमल wanted to improve the classroom scene in his mind, wanted to imprison, wanted to imprint that scene in his mind. जो कुछ भी दिख रहा है वहाँ पे, स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड, नोटिस बोर्ड, एवरीथिंग, ऐसा का ऐसा मिस्टर हैमल अपने साथ एक मेमोरी के रूप में ले जाना चाह रहे हैं. बिकॉज फॉर 40 years he had given his faithful services to the school. अब फ्रेंड्स हमें बताता है कि लगभग 40 years तक मिस्टर हैमल जो हैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं. Meanwhile, they were able to listen the dragging and scratching of the boxes, जो कि उनकी जो सिस्टर हैं, एम हैमल की सिस्टर हैं, वो पैक कर रही हैं, है ना. ही इज़ पैकिंग देयर स्टफ, तो बॉक्स को खींचने की, है ना, ये सारी आवाज़ें जो है उन्हें सुनाई दे रही हैं. All this must have been really heartbreaking for him, and finally they had a lesson in history. फ्रेंड्स जो है वो समझ पा रहा है यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें जो हैं कितनी पेनफुल हैं मिस्टर हैमल के लिए. अभी फाइनली लास्ट जो हिस्ट्री का लेसन बचा है, मिस्टर हैमल जो है वो उसको डिलीवर करने लगते हैं. वो क्या बताते हैं, एवरीबडी बिकम वेरी इमोशनल टुवर्ड्स द एंड एंड स्मॉल चिल्ड्रन ना, इवन दे स्टार्टेड क्राइंग. जब एम हैमल ने सारी को बता दी कि लास्ट लेसन है दिस एंड ऑल, तो जो छोटे बच्चे हैं जब उन्हें पता है कि अब हैमल चले जाएंगे, दे स्टार्टेड क्राइंग. बट एम हैमल हैड द करेज एंड पेशेंस टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट. लेकिन मिस्टर हैमल जो है बीइंग अ गुड टीचर, वो पूरे पेशेंस के साथ लास्ट तक अपना बेस्ट बच्चों को देके जाना चाहते हैं. एट दैट डे दे फील दैट मिस्टर हैमल इज टीचिंग थिंग्स इन सच अ वे कि ऐसा लग रहा है कि जितना कुछ उनके पास है वो सब कुछ आज यहाँ देके जाना चाहते हैं, है ना, सब कुछ ला जाते हैं. एट लास्ट मिस्टर हैमल wanted to say goodbye. He tried to speak, बोलना चाह रहे हैं, but he choked. रोने की वजह से उनका गला जो है वो रुक जाता है. He was not able to speak. So he turned back to the blackboard और पूरे ब्लैकबोर्ड पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं विवाले फ्रेंड्स. क्या लिखते हैं, विवाले फ्रेंड्स. विवाले फ्रेंड्स फ्रेंच कोट है जिसका कि मतलब है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स. तो हाउ मच पेट्रियोटिक ही इज, ये पता चल रहा है इससे. ही देन डिसमिस द क्लास सिग्नलिंग देम टू लीव. बोल भी नहीं पा रहे हो, हाथ के इशारे से ही उनको बाहर चले जाने को
बोल देते हैं दैट क्लास इज ओवर एंड यू ऑल कैन लीव नाउ. इन द लास्ट फ्यू मिनट्स वी सी दैट मिस्टर हैमल जो हैं वो अपनी बात भी नहीं बोल पाते, इतना उनको दुख है, अंदर तक इतने परेशान हैं वो, इतना दुख है उनको. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. देयर आर many hard words which you will find in the chapter. So let's discuss something about them. बहुत सारे hard words हैं जो आपको मिलेंगे फ्लैमिंगो बुक में. So let's open the chapter. While when you open your chapter, we will be beginning from page 2. हमारा चैप्टर वहीं से शुरू हो रहा है. So ओपन पेज नंबर 2. सबसे पहला 2 में आपको मिलेगा अ ग्रेट डेड ऑफ. अ ग्रेट डेड ऑफ मीन्स विद ग्रेट फियर ऑफ. उसके बाद नेक्स्ट में आपको मिलेगा एलिंग. यहाँ इसका मतलब है अंडर गोइंग मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस. Drilling, DRILLING, when military is doing practice or undergoing any training. Now come to page number 3. When you come to page number 3, the first word which you will find difficult is round on. राउंड ऑन हेयर मीन्स रिलाइड और डिपेंडेंट. जब हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहते हैं. इन पर्सन, एट वंस, ऑल टुगेदर. नाउ कम टू पेज नंबर 4. व्हेन यू कम टू पेज नंबर 4 यू विल फाइंड प्राइमर. आपको वर्ड मिलेगा प्राइमर. प्राइमर का मतलब होता है एन एलिमेंट्री स्कूल बुक, पिक्चर्स एंड ऑल के साथ बच्चों की जो बुक आती है दैट वन. इसी में जब आप आगे चलेंगे तो आपको आगे वर्ड मिलेगा थंब एट द एज. थंब एट द एजेस का मतलब है व्हेन पेजेस वोन आउट एंड मतलब ज़्यादा खोलने की वजह से या ज़्यादा टर्न करने की वजह से पेज जो है वो हमारे ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, किनारे मुड़ जाते हैं. आगे चलोगे इसी इन दिस पेज ओनली व्हेन वी प्रोसीड फर्दर थंडर क्लैप वर्ड मिलेगा आपको. थंडर क्लैप का मतलब होता है अ क्रैशिंग वॉइस ऑफ थंडर. बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, इतनी ज़ोर से दैट आवर ईयर्स आर नॉट एबल टू बेयर दैट वॉइस. आगे चलोगे इसी पेज में जब आप आगे चलोगे तो यू विल फाइंड अ वर्ड व्रेचेस. व्रेचेस का मतलब हो जाएगा विलियन, पीपल हु डिजर्व कंटेम्पमेंट, बुरे आदमी, बुरे लोग. इन दिस पेज ओनली व्हेन यू प्रोसीड फर्दर सार. सार SAAR एक्सक्लेमेशन मार्क है इसके बाद. सार क्या है? एक रिवर है इन द नॉर्दर्न ईस्ट फ्रांस और वेस्ट जर्मनी. इन दोनों को अलग करती है, दैट उस रिवर का नाम है ये. इसके बाद यू विल फाइंड अ वर्ड क्रैंकी. क्रैंकी का मतलब हो गया बैड टेम्पर्ड, स्ट्रेंज. दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ व्हेन वी कम टू पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पे आपको वर्ड मिलेगा रीअप्रोच और सेल्फ विद. रीअप्रोच और सेल्फ विद मीन्स क्रिटिसाइजिंग और सेल्फ फॉर द डीड्स डन बाय us. Now come to page number 7 because 6 is a map for you. When we come to page number 7, आपको 7 पेज में मिलेगा at one stroke. At one stroke का मतलब है यहाँ पर by a single action हैविंग इमीडिएट इफेक्ट. एकदम से इफेक्ट करने वाला एक सिंगल डिसीजन हमारा. नाउ व्हेन वी कम टू पेज नंबर 8
पेज नंबर 8 पे आपको वर्ड मिलेगा विवा लिव फ्रेंच, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, लॉन्ग लिव फ्रेंच। फिर मिलेगा बेयरिंग ऑन, फिर मिलेगा आपको बेयरिंग ऑन। बेयरिंग ऑन का यहाँ पे मतलब है प्रेजेंटिंग। Rest other words I don't find any other word is important या जो नहीं समझ में आने वाला है। Linguistic Shaivism, you will find the word linguistic Shaivism means feeling of pride for their particular language, जिसके बारे में एम हैमल जो है यहाँ पे बात भी कर रहे हैं। Now moving further, there are lots of many questions which are important. बहुत सारे questions हैं जो कि important हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। So we will be discussing those chapters जो कि हमारे लिए किस से important है, बोर्ड के नज़रिए से important है। We will be beginning up with long type of questions first, or we will start off with short type of questions first. That would be easier for you. Now the very first question which we will take, एक कुछ जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं पहले। देखो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो है हाउ डिड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल। किस तरह से बर्लिन से आया हुआ एक ऑर्डर सारी सिचुएशन को चेंज कर देता है स्कूल की। सो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड स्टॉप द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अलास्का एंड लॉरेन, क्योंकि अलास्का एंड लॉरेन वो दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं दैट आर बीइंग ओन्ड बाय जर्मन पीपल इन द वॉर। So the people in the village were saddened by this, so that the children and villagers attending the school were silent and the normal hustle and bustle of the school starting of the school was missing. अब जो वहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि जानते हैं कि आज लास्ट डे है, वो चुपचाप बैठे हैं। उस वजह से जो रोज़ की एक्टिविटी स्कूल में होती है वो एक्टिविटीज़ जो हैं नहीं हो रही हैं। सब कुछ जो है वो बिल्कुल काम क्वाइट है वहाँ पर। इवन मिस्टर एम हैमल जो है द फ्रेंच टीचर वॉज नॉट इन हिज यूजुअल स्ट्रिक्ट सेल्फ। जैसे वो रहते हैं स्ट्रिक्ट, वो उस स्ट्रिक्ट सेल्फ में नहीं है जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। द फ्रेंच he was also dressed in his ceremonial clothes, जो कि नॉर्मली वो नहीं पहनते हैं। नॉर्मली जो कपड़े वो पहनते हैं वो उन्होंने नहीं पहने हुए। ओकेजनली किसी बड़े ओकेजन पर वो जो कपड़े पहनते हैं वो आज उन्होंने पहने हुए हैं। ही मतलब however the most surprising fact was that the village regretting that day that they did not utilize the opportunities of learning French when it was possible. So they are occupying all the last benches to attend the last lesson in French. Earlier, their livelihood, they were busy in earning their livelihood, so that because of that reason they were never able to attend the school. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा वो लोग बिजी रहे, इतने ज़्यादा वो पजल रहे कि कभी भी उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं कि किस तरह से हम इस सिचुएशन को आने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड अ पर्टिकुलर ज़ील इन द स्कूल। वही बात बोल रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग द सेम थिंग। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड स्टॉप्ड द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अलास्का सडनली। It aroused a lot of zeal in the various people in the story
to learn their native language. जिस चीज़ पर आज से पहले कभी भी इनमें से किसी का भी ध्यान नहीं गया, आज वो चीज़ें सारी इनको बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रही हैं। मिस्टर हैमल, the French teacher, he changed his behavior from being a cranky and strict teacher to that of a very kind person, as it would be his last lesson and he would be going away the next day. उन्हें पता ही नहीं है, तो जो लास्ट इम्प्रेशन है अपना वो बहुत अच्छा बच्चों पे छोड़ के जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं बच्चे जो हैं वो उन्हें एक पॉजिटिवनेस के साथ याद करें। He also taught with more understanding and patience. नहीं अगर बच्चा बता पा रहा है तो भी उनको गुस्सा नहीं आ रहा है आज, जो कि जनरली उनको आया करता था। Franz was not interested in his learning the language earlier, but now he suddenly realized that he had been missing. क्या खो रहा था वो, आज उसको रियलाइज हो रहा है जब वो उसकी लास्ट क्लास है। The villagers regretted that they did not utilize the opportunities given to them for learning French when it was possible. So they had turned up in the full strength for the last class. आज जो है वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जो टाइम है वो उन्होंने कैसे वेस्ट कर दिया। अगर इस टाइम का यूटिलाइजेशन वो करते पहले तो कितना कुछ जो है वो सीख सकते थे, कितनी सारी चीज़ें हैं जो वो सीख सकते थे, समझ सकते थे। आज उनको रियलाइजेशन हो रहा है इन सारी चीज़ों का। सो दे वर वेरी दे फेल्ट वेरी बैड अबाउट दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आता है ये क्वेश्चन बेसिकली, और 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनमें आता है ये क्वेश्चन है, आवर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ अवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम when M. Hamel's last lesson is going on, how they show their love and respect towards the language French. अब there are lots of many ways to answer this question. हम कैसे आंसर करेंगे इसको? A language of a country is the identity of that nation. एक नेशन जाना जाता है अपने सिटीजन्स के पेट्रियाटिज्म के लिए, अपनी आर्ट ट्रेडिशन कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए। मिस्टर हैमल जो हैं इन दिस लास्ट लेसन टेल्स हिज स्टूडेंट अबाउट द ब्यूटी ऑफ देयर लैंग्वेज फ्रेंच विच इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय जर्मन। अब वो आज जब उनकी लैंग्वेज छीन ली गई है उनसे, तब उन लोगों को अपनी इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस का पता चला है। तो अब मिस्टर हैमल जो हैं बच्चों को बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लैंग्वेज की। ही सेज दैट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड ही डिस्क्राइब्स इट्स फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट क्लियर एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। The teacher elaborates the beauty of his country's language. He says that during colonial rule, when the colonial powers tried to enforce political and cultural dominance by imposing their own language, if the natives are attached to their native language, their identity remains intact. अब वो जिस वक्त हमारी ये स्टोरी सेटअप हुई थी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट एरा वॉज कॉलोनिकल एरा। कॉलोनिकल एरा किसे कहा जाता है? कॉलोनिकल एरा कहा जाता है जब दूसरे कंट्रीज के अंडर में हम लोग रह रहे होते हैं। जैसे वी इंडियंस वर लिविंग अंडर ब्रिटिश रूल फॉर 200 years, तो एट दैट टाइम वी वर कॉलोनिकल कंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स। तो जो राइटर है हमारा वो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि इन दिस कॉलोनिकल एरा
जो कंट्री है जिसकी हम कॉलोनी है, जिसने हम पर कब्जा कर लिया है, वो अपना कल्चर, अब पॉलिटिकल कल्चर हम पर थोपने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उनसे बचने के तरीके क्या हैं? उनसे बचने के तरीके यही हैं कि वी मस्ट बी क्लियर अबाउट आवर ओन कल्चर, आवर ओन ट्रेडिशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज थिंग्स। हम बिल्कुल क्लियर रहे। उनकी वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी ही थोप सकते हैं हम पे, बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम पर नहीं थोप सकते जब तक हम खुद ऐसा नहीं चाहेंगे। They could say that they are having the key to their prison as long as they are holding fast with their language। तब जब तक हम अपने कल्चर से, अपने आर्ट, ट्रेडिशन, इन सब से बंधे हुए हैं, तब तक हमारे पास एक प्ली है कि हम उस कॉलोनियल रूल से बाहर निकल सकते हैं। अब these words of M. Hamill, they created a sense of patriotism in the hearts of all village elders who have come to thank him for his 40 years of faithful service to their language and regretted not paying sincere attention towards it। अब वो जितने भी लोग वहाँ पर हैं उस वक्त, वो सिंसियरली बहुत थैंकफुल फील कर रहे हैं एम हैमिल के लिए कि इतने साल तक इन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों को, हमारे बच्चों को एजुकेट किया, लेकिन कमी जो है वो हमारी तरफ से ही रह गई। एक और क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है, दैट दिस ऑल्सो कम्स इन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू रियलाइज दैट मैन हैज़ एन इंटेंस डिज़ायर to subjugate others. You feel that in the modern world there is strange need of brotherhood। colonial उसके against में कह रहा है। During the French-Persian War हम क्या देखते हैं? As related in the story, the last lesson, France lost two of its provinces to Germany, Alaska and Lawrence। अब वो क्या चाहता है कि जो उनकी लैंग्वेज है फ्रेंच, वो ना पढ़ाई जाए उनको और जर्मन पढ़ाया जाए। हालांकि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इम्पोर्टेंस या विजिलेंस इस चीज़ की नज़र नहीं आती है, भाई क्यों, वो जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने तो क्या दिक्कत है। बट टू प्रूव देयर सुपीरियरिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन लोगों पर थोपी जा रही हैं ना। लोकल रेजिडेंट्स को ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है ये सब करने के लिए। इट फिल्ड द पीपल विद ग्रेट पैट्रियोटिक फीलिंग, और इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल उल्टा होगा। लोग जो हैं वो और ज़्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग से भर जाएंगे। नाउ सडनली ऑन द रूफ द पिजन्स वर क्विंग। जब मिस्टर हैमिल ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम देखते हैं छत के ऊपर जो है वो पिजन्स बोल रहे हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन हमारे फ्रेंड्स के दिमाग में ही ये क्वेश्चन आता है दैट जो कि वो खुद से ही पूछता है। तो फ्रेंड आस्क हिमसेल्फ ओनली वेदर दे विल मेक द पिजन ऑल्सो सिंग इन जर्मन, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो दे कैन एनफोर्स अस ओनली, बट they cannot enforce birds, they cannot enforce plants, they cannot enforce animals to leave their language and start speaking in Germany. This remark is a Frenchman's typical reaction that the imposing of learning the German language is not at all correct. अब this feeling filled the heart of French people in hatred towards German. कि एक लड़ाई क्या जीत गए, एक डिस्ट्रिक्ट क्या जीत गए, like they are behind our life, they want us to change everything। इससे क्या होगा, दोनों के बीच में, इधर जर्मन और फ्रेंच के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ती चली जाएंगी,
और ये जो इंस्टेंस है is a question which makes it clear that human being has a long and strong desire to impose his will and wish to other people. कि एक ट्रेंड हो गया है, एक दिस इज द मोस्ट टेरिबल कन्फ्लिक्ट विच वॉज गोइंग इनसाइड द माइंड of the people.